Greetings of the day, students. Welcome to the first lecture of Theory of Computation subject. And my name is Kunal Sahitya, and we are going to be dealing with this subject throughout the semester. So many of you have already joined the Google Classroom of this subject. So as you guys all know, I'll be posting video lectures of Theory of Computation in Google Classroom, and we'll be taking some live lectures as well. Fine. So it will be a mixture of both. Most of the assignments and theory part will be posted in the Google Classroom regarding this subject. So keep visiting the Google Classroom at regular intervals so that you don't lag behind in the subject. If you have any doubts, etc., then you can comment it in the classroom. I'll solve it there, or you can reach out to me. Fine, whatever prefers to you. So before moving to the subject content, we'll be seeing the evaluation scheme and course content, etc. But before that, I just want to tell about my technical side. Right? So my area of interest basically lies in cryptocurrencies. Right now I'm doing my research in cryptocurrencies, specifically in Bitcoin blockchain. I also do programming in Python and R languages, mainly backend programming. Fine. So yeah, I hope you guys know your technical side as well. So when we meet for our first live lecture, I hope every one of you will introduce yourself and your technical side, what you like in computers and all. Right? Yeah. So just moving with our course content. So first of all, evaluation scheme. So generally every subject has evaluation scheme. How the credits will be of subject. We have 3 credit subject. ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा क्रेडिट का है तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं. जितनी क्रेडिट होती है सब्जेक्ट की उसके हिसाब से उसके थियरी लेक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग द वीक. सो वी हैव 3 क्रेडिट सब्जेक्ट, सो वी विल बी हैविंग 3 theory lectures per week, no practical assigned as you can see, right? So how are you going to marks distributed by the GTU? You will be giving 100 marks exams. 70 mark exam will be from GTU external and semester exam, right? And then you'll be having some theory assessment of mid-semester examination and practical assignments like preparing PPT or etc. whatever we give you. Fine. So institute has 30 marks control. Fine. So plan accordingly. Then we have some discussion point before we move into the course content. We'll just quickly go through the course file, I guess. Yeah, I have a course file here. So prerequisites कैलकुलस है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है. मोस्टली कैलकुलस थोड़ा बहुत चाहिए होगा हमें. आई डोंट थिंक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स इतने ज़्यादा चाहिए होंगे, बट या जो भी चाहिए होगा विल बी सीइंग अ बिट ऑफ डिटेल ऑफ इट. हम थोड़ा बहुत उसका बेसिक्स कर लेंगे, राइट. सो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन जनरली होता क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है जो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर आते हैं. यानी कि प्रॉब्लम पहले थियोरेटिकल सॉल्व किए जाते हैं, बाद में उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है. सो वैसे प्रॉब्लम्स जो है वो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में डील किए जाते हैं यूजिंग अल्गोरिदम. अल्गोरिदम प्रिपेयर करना है, कोई प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा. जैसे कि हमारा सी प्रोग्राम है तो हम जनरली क्या करते हैं, सी प्रोग्राम लिख के चेक करते हैं बिफोर चेकिंग इट विद थियरी. जैसे कि मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा है तो मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख के I'll just simply check it with C programming, Java programming और Python programming. I won't worry about the loops कि वो infinite loop में चला जाएगा तो क्या होगा. बट जनरली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होते हैं. इफ यू नो अबाउट लेट्स से सुपर कंप्यूटर्स और वेरी हाईली एफिशिएंट कंप्यूटर्स, ठीक है. सो ऐसे कंप्यूटर्स में जब प्रोग्राम रन करने होते हैं, जो प्रोग्राम महीने चलते हैं, दिन भर चलते हैं, सो अगर ऐसे प्रोग्राम्स को अगर आप थियोरेटिकली इवेल्युएट नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना दे. मैंने सुपर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है वो 2-3 महीनों तक रन किया. दैट्स आई वाज ट्राइंग टू क्रैक द हैश. अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी है तो गूगल claimed that he has solved the hashing algorithm, right? So ऐसे algorithms कैसे कोई कंप्यूटर सॉल्व करता है? वो कंप्यूटर इसीलिए सॉल्व करता है क्योंकि वो बहुत ही एफिशिएंट है. तो एफिशिएंट कंप्यूटर पे हम कोई भी algorithm या कोई भी प्रैक्टिकल है वो सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर से नॉर्मल सी प्रोग्राम, प्राइम नंबर प्रोग्राम की तरह चेक नहीं कर सकते. हमें उसको पहले थियोरेटिकली चेक करना होगा कि वो कौन से आउटपुट हमें दे सकता है और कौन से वे में दे सकता है, ठीक है. सो ऐसा सब थियोरेटिकल चेक करने के लिए मॉडल होता है, उसे theory of computation model कहते हैं. Okay, so what can be the computer's behavior in a different manner, right? So first chapter is very simple and fundamental of mathematics.
सेट्स, फंक्शन, लॉजिकल स्टेटमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, वही पढ़ेंगे सेट थियरी वाला। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत प्रूफ्स है, लैंग्वेजेस है, मैथमेटिकल इंडक्शन है जो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो वी विल बी सीइंग दैट थिंग। Yeah, then we have important part, regular languages and finite automata और context free grammar. Second और third chapter बहुत important है और foundation है इस subjects के. So we'll study those things in very detail, as much as detail as possible. Okay, and then we have fourth, fifth chapter. Obviously chapters एक दूसरे पे dependent होंगे. Fourth, fifth आपको तभी आएगा जब आपका second, third का foundation clear है. ठीक है. Turing machine chapter important है, historical aspect से भी. Right? We'll see that in detail. एंड देन वी हैव सम कंप्यूटेबल फंक्शंस की जो हम बात कर रहे थे, कोई कोई फंक्शन है वो एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है, उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट है जो वो हमारी एग्जिस्टिंग मेमोरी अवेलेबिलिटी से कंपेयर करता है नहीं करता है, उससे वो चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं फंक्शंस के बारे में, कोई भी प्रोग्राम के बारे में, वो हम कैसे डील कर सकते हैं, उसका थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं छोटा सा। ओके, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिसका वेटेज ज़्यादा नहीं है आई वोंट वेस्ट योर टाइम मच इन दैट, right? But it's important thing, so to see those theoretical aspects. Okay, we'll try to make it as much fun as possible. And then we have reference book. I always suggest that you follow reference book. मुझे पूरी क्लास का देखना होगा, इसीलिए I'll follow the book that is given to you by the institution mostly, right? So but there are some good books. One of them a very good book is by Adesh K. Pandey, that is Introduction to Automata Theory in Formal Languages. It's a very good book and according to your course mostly. And then there's a John C. Martin book for theory of computation. It is also a good book if you can follow it. You can get books from the library. Okay, so if you wish to take the books, you can just check it in the library. You should follow these reference books along with the normal book. Okay, so this is about course content, and yeah, and we'll be having active learning assignments. So active learning assignments will be containing mostly PowerPoint slides. I'll give you some topics of chapters that you'll have to prepare slides about, and you'll have to present it in front of the class, right? So this is how a course is gonna progress. Okay, then we have why study TOC. Most of the things I have already told you, that there are computers that are very efficient and that are very costly. सुपर कंप्यूटर्स हैं, दूसरे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे कंप्यूटर्स में जब हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, कोई प्रोग्राम हमें चेक करना होता है, कोई हमारा एल्गोरिथम चेक करना होता है, तो हम उसको ट्राई एंड एरर कर तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत हमें और ह्यूमैनिटी को, उससे जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे एल्गोरिथम तो थियोरेटिकली चेक करने पड़ते हैं, कौन से रिजल्ट ला सकते हैं, तो वो हम थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में उसको मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करके बना के चेक कर सकते हैं। सो फादर ऑफ द थियरी ऑफ कंप्यूटेशन इज एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग करके मैथमेटिशियन थे बेसिकली, उसको कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बोला गया है, बट तभी कंप्यूटर्स थे ही नहीं, तो जनरली उसको कंप्यूटर साइंटिस्ट का टर्म का इन्वेंशन बाद में दिया गया है। सो एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ही डिड सम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। उसका हिस्ट्री रिलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री रिलेवेंस किस तरीके से है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, वी ऑल नो अबाउट वर्ल्ड वॉर टू, तभी जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में नोकझोंक चल रही थी। सो ब्रिटिशर्स वर इम्पोर्टिंग द फूड एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री। वो आउटसाइड कंट्री से काफ़ी सारी चीज़ें थ्रू बोट एंड थ्रू अदर सी मीडियम, जनरली समुंदर के रास्ते से वो लोग काफी सारी चीजें मंगाते थे, पर समहाउ नाजीज को ये चीजें पता चल जाती थी। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रीड इट। आई जस्ट ब्रीफ इट आउट हियर, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ कि एलन ट्यूरिंग ने ऐसा fine, so there are some historical relevance about these topics or theory of computation. So if you have time, go through some history topics, or there are a couple of movies I'll suggest you to watch if you follow Alan Turing's life. अगर आपको Alan Turing की लाइफ को फॉलो करना है तो बहुत अच्छी अच्छी couple of movies हैं जो हॉलीवुड movies हैं। One is Imitation Game और the one is Code Breakers. Fine. So yeah, they are Hollywood movies, so watch it if you like it। अगर आपको एलन ट्यूरिंग को फॉलो करना है, there are some good movies। ठीक है, सो उसका हिस्ट्री रिलेवेंस भी पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री रिलेवेंस पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है कि why should we study this subject। And apart from these things, if we come into real life, many of the students prepare government exams। You are in the 6th semester, so probably in next year
you'll be appearing for interviews and all, so they prepare for government exams and all. So उसमें theory of computation बहुत important subject होता है. Even if you're preparing for GATE in final exam, theory of computation is a major subject. There are some many important exams like ISRO and all. अगर आप कोई भी साइंटिस्ट पोजीशन के लिए एग्जाम देते हैं तो उसमें थियरी ऑफ कंप्यूटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. उसमें बहुत सिंपल और इजी सवाल पूछ जाते हैं जो थ्रू आउट दिस सेमेस्टर एंड थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट विल डिस्कस. So I suggest that you keep track of this subject. Keep an eye on this subject. Be handy. इसमें handy रहिए. बहुत easy subject है और अच्छे से खत्म हो जाएगा. बट आपको सिंपल और इम्पोर्टेंट चीज पर ही फॉलो करना है. ठीक है, लेक्चर्स को फॉलो करना है और सिंपली जो ग्राउंड वर्क है, जो वर्क मैं देता जा रहा हूँ उसको कंप्लीट करते जाना है. दैट्स इट. ओके, सो यू शुड नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. इसीलिए मैं उसका हिस्ट्री रिलेवेंस ऑलवेज बताता हूँ. जो भी हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उसका हिस्ट्री रिलेवेंस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है. फाइन. सो या एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे सेट्स रिलेटेड. इट्स रियली इजी. फाइन. सो हमें पता है सबको कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में कौन से स्टडी करने हैं. टू अंडरस्टैंड थियरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट देयर आर 4 सेट्स है, फंक्शंस है, रिलेशंस है और लॉजिक. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद सेट्स. सेट्स क्या होते हैं और क्या सब देखेंगे, उसके टाइप्स एक्सेट्रा. सो सेट क्या होता है? एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. कोई भी एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स उसको कलेक्शन करते हैं उसको सेट कहते हैं. जनरली हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे, जैसे कि a इज इक्वल टू 3 5 7 9. ओके, अगर ये कोई एक सेट है तो a इज इक्वल टू 3 5 7 9. ये कैसा सेट है? ये ऑड इंटीजर का सेट है. ये आप देख रहे हैं जैसे कि सारे इंटीजर्स हैं और सारे ऑड हैं. ठीक है, बट दे आर ऑल ग्रेटर देन 1. सो उसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. उसका अलग रिप्रेजेंटेशन है. ओके, इसको प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं कि x where this vertical line is readable as where. x where x is an odd integer comma x greater than 1. यानी ऐसे सारे x एलिमेंट्स का कलेक्शन है a सेट कि जो ऑड इंटीजर्स हैं पर ग्रेटर देन 1 है. सो ऑड इंटीजर जो भी ग्रेटर देन 1 है वो सारे इसमें आएंगे. दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है विल डिस्कस इट. बट ये सजेस्ट करता है जो 3 डॉट्स है कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन शॉर्ट. ओके, सो दिस सेट कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स. ओके, और सेट है वो मैथमेटिकल हो भी सकता है और मैथमेटिकल नहीं भी हो सकता है. सेट का मतलब है सिंपल सेट ऑफ एलिमेंट्स. कोई भी आप अगर क्रिकेट के टर्म में सोचते हैं तो सेट क्या होता है? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि highest rated batsman in Indian team, set of highest rated batsmen in Indian team. तो आप अभी जैसे जो फेमस नाम है आप वही नाम बताएंगे. मुझे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एंड देन वी हैव केएल राहुल, राइट. सो ये सब मेंबर्स ऑफ अ सेट है. सो सेट है वो कोई भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम जनरली कौन से टर्म्स में बात करेंगे? मैथमेटिकल टर्म्स में, और कलेक्शन ऑफ नंबर्स के टर्म्स में बात करेंगे. और सेट का मतलब होता है कोई भी collection of elements. It can be the name of the cricketers, name of the persons, name of the students. जो अगर हम बात कर रहे हैं कि जिसकी एवरेज है वो 50 अप है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स के नाम. ठीक है, सो वो एक सेट है. सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose average is 50 up, 60 up, 70 up. ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं मेंबर्स के नाम. अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेट्स से मैं ऐसा सेट की बात कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सब 90 अप. ठीक है, so let's say there is no student in class having 90 up percentage marks, so there will be empty set. empty set को कैसे represent करेंगे? null से. this is called a sign phi. okay, इस साइन को phi कहते हैं. क्लियर है? ठीक है, so ये उसका प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन है. प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन और कैसे कर सकते हैं? 2k plus 1. कोई भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं? 2k plus 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और k belongs to n. n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलस में पता होना चाहिए. जैसे कि मैं बताया था, k है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. उसमें सारे नंबर्स ऐसे आते हैं जो अप टू 1 टू इंफिनिटी. सो k की वैल्यू, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे इंटीजर्स इसमें आ सकते हैं. सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन आपको कौन सा सेट मिलेगा? ये तीनों डेफिनेशन है वो एक ही सेट की है, अलग अलग तरीके से बस लिखी हुई है. सो सेट का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि हम कैसे सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट सेट. एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि ये दो सेट है, ए के कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के कुछ एलिमेंट्स हैं. दोनों के कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं जो ए और बी दोनों में है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड अदर थिंग्स दैट वी विल स्टडी
next lecture. So we'll keep it to the sets only, right? Go through this lecture. Have a good day.